اہم موقع پہ تشریف لائے یار یہ خاموشی طرح پیچھے میں آج آپ کے سامنے چند معروضات رکھنا چاہتا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنیاد کے اوپر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد آج ممکن نہ ہو سکا اور آئندہ کی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کیا صورتحال ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل آنریبل جسٹس صاحب نے ایک آرڈر کیا اور وہ حکم یہ تھا کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ آج یعنی 31 دسمبر کو کرائے جائیں۔ بلدیاتی الیکشن کرانے کا یہ جو آرڈر ہے یہ کل شام تقریباً 5 بجے کے قریب یعنی مغرب کے ٹائم پہ سنایا گیا۔ عدالت کا فیصلہ ہماری سار آنکھوں پہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ عدالتوں کے احترام اور ان کے فیصلے ماننے کے حوالے سے کسی سے ڈھکی چکی نہیں ہے۔ ہمیں آج بھی عدالت کے فیصلے کا انتہائی احترام ہے، لیکن الیکشن کا جو عمل ہے اس کی جو ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس ہوتی ہیں، جو انتظامی امور ہوتے ہیں، وہ کیا ایک رات میں ان کو کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ اہم سوال تھا جو فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے تھا۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ 1000 سے زائد پولنگ اسٹیشن بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پورے اسلام آباد میں قائم کیے گئے ہیں۔ اگر ایک پولنگ اسٹیشن پہ 20 سے 25 افراد کا عملہ، جن میں آپ کی سیکورٹی کے لوگ، پولیس کے لوگ اور آپ کے الیکشن کمیشن کے افراد، پریزائڈنگ آفیسر، سب پریزائڈنگ آفیسر اور وہ تمام اگر شامل کیے جائیں، 20-25 لوگ ایک پریزائڈنگ آفیسر تھے، تو 20 سے 25 ہزار لوگ ایک رات میں موبلائز کرنے تھے، جن میں سے زیادہ تر افراد وہ ہیں جن کا تعلق اسلام آباد کے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن سے ہے اور وہاں پہ اس وقت چھٹیاں ہیں، تو تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھٹیاں منا رہے ہیں۔ تو عملی طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ 20-25 ہزار لوگوں کو، جن میں آدھی تعداد جو ہے خواتین کی ہے، جو خواتین ووٹرز کے لیے عملہ معزز خواتین کا تعینات کیا جاتا ہے۔ ایک یہ بات، پھر جو الیکشن کمیشن کا جو سامان ہے اس کی ترسیل، پھر سیکیورٹی کے اداروں سے اضافی نفری لینا، تو یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں کہ چونکہ انتظامی طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک دن کے اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کیا جائے، اسی لیے آج اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے۔ اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ عدالتی فیصلے کا بالکل احترام ہے، اور آج فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل اس فیصلے کے خلاف دائر کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آگے عدالت کا حکم ہوگا اس پہ منون عمل کرایا جائے گا۔ دوسری بات، اس وقت بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے موجودہ صورتحال اور اسٹیٹس کیا ہے اسلام آباد میں؟ آپ کو یاد ہوگا ہمارے پچھلے دور حکومت میں اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن 2015 میں ہوا تھا، اور وہ پارلیمنٹ کا ایکٹ تھا، لوکل باڈیز ایکٹ 2015۔ آج دو باتیں ہو چکی ہیں۔ ایک تو جو الیکشن کمیشن ایک تو اس ایکٹ کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کو جو اختیار دیا گیا ہے سیکشن 6 کہ یونین کونسلز کی تعداد کا تعین آپ نے کرنا ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ نے یونین کونسلز کی تعداد 101 سے 125 کر دی ہے۔ اس بنیاد پہ بھی اب بلدیاتی الیکشن جو کہ 31 دسمبر کو ہونا تھا، اس کی اثر 9 حلقہ بندیاں ہونی ہیں 125 یونین کونسلوں کے اوپر۔ اور یہ جو معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے پہلے 24 دسمبر کے اپنے فیصلے میں سنا دیا ہے کہ یہ پریروگیٹو اور یہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ وہ نمبر آف یونین کونسلز ڈٹرمن کرے، جو اس وقت نوٹیفیکیشن کے ذریعے 125 یونین کونسلز کا تعین کیا جا چکا ہے اور 125 یونین کونسلز پہ نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں۔ دوسری بات کہ جو ایکٹ تھا 2015 اس کی بھی امینڈمنٹ ہو چکی ہے اور اسے اسمبلی پاس کر چکی ہے، اسے سینٹ پاس کر چکی ہے۔ دو باتیں اس میں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کیا گیا ہے کہ جو یونین کونسلز 125 میں نے آپ سے کہا وہ اس ایکٹ کی امینڈمنٹ میں بھی مینشن کر دی گئی ہے کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے
उसमें यूनियन काउंसिल जो 25 होंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात उसमें की गई है कि मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट उसमें कहा गया है कि डायरेक्ट तरीके से वो होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, पूरे ज़िले पर वो इलेक्शन होगा। ये 2 अमेंडमेंट उसमें हुई हैं। अब वो बिल सदर साहब के पास है, सदर साहब का इख्तियार है कि वो 10 दिन तक उसे रख सकते हैं। 4-5 दिन गुजर चुके हैं, 5-6 दिन में अगर सदर साहब उस पर साइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाता है। ये पाकिस्तान का आईन कहता है, मैं नहीं कहता, गवर्नमेंट नहीं कहती। तो मुझे अब ये बताएं, मेरा ये सवाल है कि अगर ये इलेक्शन आज छोड़ दें, ये जो भी है यहाँ पे सारी लिटिगेशन हुई है, कल जो फैसला हुआ, जो 24 दिसंबर को जो फैसला किया गया, अगर आज 31 दिसंबर को ये इलेक्शन इन्हीं 101 यूनिट काउंसिल पे होता है और 6 दिन बाद एक्ट बन जाता है, जो बनना है उसने इंशाल्लाह, तो इन बल्दियाती नुमाइंदों की और इन मुंतखब चेयरमैनों की जो मियाद थी, जो उम्र थी, वो 6 दिन होती। सिर्फ 6 दिन बाद इन्होंने खुद ब खुद तहलील हो जाना है और दोबारा आपका इलेक्शन डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन आज अगर होता तो ये बल्दियाती नुमाइंदे जो भी मुंतखब होते, ये अपना मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, ये अपने डिप्टी मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं बन सकती थी, इसलिए कि एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है। और आज जो ऑनरेबल जज साहब ने वेरी राइटली ही सेड कि जनाब इतने जो अखराजात हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन कर चुका है तैयारी पे, उसका उन्होंने हिसाब मांगा, बिल्कुल सही किया, जाहिर है पब्लिक बनी है, कितना खर्चा हुआ। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये इलेक्शन अगर आज होता है और करोड़ों अरबों रुपए इस पर खर्च हो जाते हैं और ये बल्दियाती नुमाइंदे आप सिर्फ 6 दिनों के लिए मुंतखब कराना चाहते हैं, और किस लिए कराना चाहते हैं? जब ये मेयर नहीं मुंतखब कर सकते, जब ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं बन सकती, तो 6 दिनों के लिए ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन किस हवाले से इनेकाद पजीर होना चाहता है? ये हमारी समझ से तो बाहर है। तो लिहाजा जो अमेंडमेंट एक्ट में हो चुकी है वो इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 6 दिन बाद उसने एक्ट बन जाना है और उसके बाद उसके तनाजुर में डायरेक्ट इलेक्शन होगा और इस्लामाबाद में जो 125 यूनियन काउंसिल्स हैं उनकी हल्काबंदी भी असर नो हो। अब मैं ये बात करता हूँ जी कि जो झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा जालसाजों की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होता आया है, मुसलसल हम झूठ सुन रहे हैं। वैसे तो उनकी सियासत है ही मकर और फरेब पे मबनी, लेकिन जितना झूठ उन्होंने इस इलेक्शन में बोला, और सबसे ज़्यादा फवाद चौधरी साहब वहाँ वो शुरू हुए, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के तो कैंडिडेट ही पूरे नहीं हैं, कभी कहा 30 कैंडिडेट हैं 101 यूनियन काउंसिल्स पे, कभी कहा 40 हैं। मैं अपने भाई फवाद चौधरी को मशवरा देता हूँ कि पहले अपने घर अपने ज़िले की खबर लो। तुम्हारा भाई जो इलेक्टेड MNA है जेलम से, वो तुम्हारी जमात PTI को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुका है। अपने पहले ज़िले की खबर लें, उसके बाद आके इस्लामाबाद में आप अपने ये झूठे बयानात और झूठी मनफी सियासत करें। मैं मीडिया के सामने इससे पहले भी और आज फिर अपने इस वक्त जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे इस इलेक्शन के लिए अपने कागजात नमज़ीद जमा कराए और जो लड़ रहे थे, वो फहरिस्त आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिर्फ 2 यूनियन काउंसिल्स के अलावा, और वो यूनियन काउंसिल्स डिफेंस एरिया की है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, डिफेंस का एरिया है। उसके अलावा 99 यूनियन काउंसिल्स पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं और चेयरमैन जो है वो अपने तमाम तारीख इंतजामात उनके मुकम्मल हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो लिहाजा ये सबसे पहला झूठा प्रोपेगेंडा, ये लिस्ट मेरे सामने है, मैं आपके हवाले करता हूँ, आप बेशक मीडिया के भाइयों को दे दें। दूसरी बात कि जनाब इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा और ड्रामा किए जा रही है, मुझे अब ये बताएं कि जो इलेक्शन हमारे दौर में हुए बल्दियात इस्लामाबाद में, जो बल्दियाती इलेक्शन है, आखिरी इलेक्शन जो हमारे दौर में हुआ 2015 में, उससे पहले इलेक्शन जो है वो 1979 में हुआ था। तो ये एजाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हासिल है कि 1979 के बाद 2015 में पहली दफ़ा इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराते हैं, और उस वक्त गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है और वज़ीर-ए-आज़म है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। वो इलेक्शन हमारे दौर में हुए, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनी, और उनकी जो मियाद है वो कब पूरी होती है? वो होती है जनवरी 2021, 2021 जनवरी में वो इदारे तहलील हो जाते हैं। PTI की हुकूमत रहती है अप्रैल 2022, यानी 1 साल 4 महीने। 1 साल 4 महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
इस्लाम आबाद में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए? मुझे इस सवाल का जवाब दें कि आज जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले ड्रामे कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मैं इनसे पूछता हूँ कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, जब बल्दियाती इलेक्शनों की मुद्दत ख़त्म हो गई तो 1 साल 4 महीने आपकी हुकूमत कायम रही, आपने ये इलेक्शन क्यों नहीं कराए? और जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये इदारे जो जनवरी 2021 में तहलील हुए, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल दिया। कब इलेक्शन शेड्यूल दिया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑर्डिनेंस लेके आई, लोकल बॉडी ऑर्डिनेंस 2021, ये आप मीडिया के सब भाइयों को पता है। उस ऑर्डिनेंस में भी डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन की बात की गई। बात आज हम कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की सपोर्ट कर रहे हैं। जो अपने ऑर्डिनेंस में आप लेके आए थे डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन हो, वो ऑर्डिनेंस अदालत के जरिए सेटिस्फाइड हुआ और उसके बाद ये अमल चलता रहा, आपकी हुकूमत चली गई। लेकिन 1 साल 4 महीने ना तो आप इंटरेस्टेड थे बल्दियात के इलेक्शन में और ना आप ये इलेक्शन जो है करवा सकें। दूसरी बात, पंजाब की सूरत हाल है। आज आप इदारों को पहले तो गालियाँ देते हैं, फिर कहते हैं इदारे बड़े काबिल एहतराम हैं, फिर आप कहते हैं जनाब के अदालती हुक्म जो है, जो मैंने कहा कि इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर मुमकिन नहीं था, उस पर आप आज बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अदालती हुक्म पे अमल पैरा नहीं किया। मैं पूछता हूँ इनसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि पंजाब में जब आप हुकूमत में आए 2018 में, तो सबसे पहले आपने बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं उन्हें आपने मुअत्तल किया। पूरे पंजाब में तमाम लोकल बॉडीज़ के इदारों को PTI हुकूमत ने सस्पेंड किया सबसे पहले। उसके बाद वो बहाल हुए। कहाँ से बहाल हुए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उसकी बहाली के बाद क्या आपने उन बल्दियाती नुमाइंदों को अपने दफ्तरों का चार्ज लेने दिया? दफ्तर खोले आपने। वो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन, वो यूनिट काउंसिल के चेयरमैन, वो अपने दफ्तरों के लॉन में मीटिंग करते रहे, आपने उन्हें दफ्तरों में नहीं घुसने दिया। ये है आपकी इज्जत बल्दियाती इदारों के लिए, बल्दियाती नुमाइंदों के लिए। क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों अपने मकरू प्रोपेगेंडे के ज़रिए आप ये बात कौम को बता रहे हैं? कम तो बल्दियाती इदारों के बहुत हक में है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 13 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है पंजाब की। आपने वहाँ पे ये इदारे मुअत्तल रखे। और फिर मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई, आप उसमें भी पेश नहीं हुए। और जब तक आप हुकूमत में रहे, आपने बल्दियाती नुमाइंदों को और इदारों को ना बहाल होने के बावजूद ना चार्ज दिया और ना उसके बाद आपने वहाँ पे इलेक्शन होने दिए। तो ये पंजाब के सबसे बड़े सूबे की कहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो हुआ वो मैं आपके सामने रखी है। और आज यहाँ पे बड़ा प्रोपेगेंडा जनाब, हम बहुत बड़े चैंपियन हैं बल्दियाती इदारों के और हम बहुत बड़े दावेदार हैं। फिर 4 साल में मुझे ये बताएं कि आज आप कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन को फेस नहीं करना चाहती। आप मुझे ये बताएं कि आपके क्रेडिट में इस्लामाबाद में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी खिदमत आपने इस्लामाबाद की जिसकी बुनियाद पर ये लोग आपको वोट देंगे? क्या जो आपके झूठे ड्रामे हैं उनकी बुनियाद के ऊपर? क्या जो आप इदारों की तजलील कर रहे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर? इमरान खान की मनफी सियासत के ऊपर? वो भी दिन ब दिन एक्सपोज हो रही है। हर आने वाला दिन इमरान खान की मनफी सियासत को, झूठी सियासत को, उनके फरेब को, उनके मकर को, उनकी चोरी शख्सियत को एक्सपोज कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का पता है कि हमारी सियासत अगले चंद दिन नहीं तो चंद महीने की है। इससे ज़्यादा वो आप सर्वाइव करने वाले नहीं है पाकिस्तान की सियासत। इस्लामाबाद की आपने जो 2-3 प्रोजेक्ट शुरू किए, 4 साल तक उनको लटकाई रखा। एक प्रोजेक्ट आप मुकम्मल नहीं कर सकते। रूरल एरिया में कोई डेवलपमेंट आपने की है, इस्लामाबाद सिटी में कोई डेवलपमेंट आपने की है। हाँ, अगर आपने किया तो इस्लामाबाद में जो हमारे कोई ग्रीन पार्क्स हैं, जैसे ये ग्रिल्स लगी हुई हैं, इन ग्रिल्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे का रंग कर दिया। जगह जगह आपने बोर्ड अवेज़ा कर दिए। इसके अलावा आप कोई खिदमत की सियासत यहाँ नहीं कर सके। हमने अपने अल्लाह ताला के फजल से अपना जो हमारे दौरे हुकूमत है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे ये इलेक्शन हुए थे 2015 में, हमारे उस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मुस्लिम लीग नून के मेयर मुंतखब हुए।
उन्होंने अपने दौर में डिलीवर किया। हमने कोई 150 से ज़्यादा उस वक्त भी देहात में सुई गैस दी, पानी के प्रोजेक्ट्स दिए, बिजली के प्रोजेक्ट्स दिए, रोड्स बनी, कारपेटिंग हुई। उसके अलावा कई और ऐसे डेवलपमेंट के मंसूबे हैं जो CDA के डिपार्टमेंट से किए, और इंशाअल्लाह ताला अभी भी बहुत जल्द हम आपको बताएंगे कि मौजूदा दौर हुकूमत में मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में, जो मशहूर है शहबाज स्पीड के नाम से, उनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के लिए जो मंसूबे, जो पैकेजेस आ रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं मीडिया के सामने उनका रखूँगा पूरा प्रोग्राम, और हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद का रूरल एरिया, इस्लामाबाद का सिटी एरिया, इनकी डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमारी इस गवर्नमेंट के पास क्या है। मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो मसाइल बारागऊ के हैं, चिराग के हैं, रवात के हैं, शकरयाल के हैं, वो मसाइल G10 के नहीं हैं, F6 के नहीं हैं, G6 के नहीं हैं, लेकिन शहरों के मसाइल बहरहाल मौजूद हैं, हमें पता है इस बात का। हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आएंगे। लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें इदारों का भी एहतराम है, हमें अदालती फैसलों का भी एहतराम है, और हम आइंदा भी, पहले भी उन पर अमल किया, आइंदा भी करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी, आप ये कहें कि ऑब्स्टिकल थी, ऐसी एक इंतज़ामी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आज इलेक्शन इनेकाद पजीर नहीं हो सके। आज जगह जगह मैं देख रहा हूँ, कभी कोई दीवारों पे फलांग रहे हैं, कभी स्कूलों के गेट पे खड़े होकर रो रहे हैं। तो मैं उन्हें कहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, कि रोने धोने से, छलांगे मारने से, ड्रामे से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आए मैदान में मुकाबला करें। मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि यहाँ से अगला मेयर मुस्लिम लीग नून का बनेगा, और डायरेक्ट इलेक्शन से बनेगा इंशाल्लाह। हम अपनी खिदमत से ये इंशाल्लाह ताला साबित करेंगे कि जो फैसला होगा इस्लामाबाद की आवाम को, वो बेहतरीन फैसला होगा। जी प्लीज, थैंक यू। आपके पिछले दौर हुकूमत में इस्लामाबाद में गैस और बिजली के मीटरों पर पाबंदी लगी थी, और जो आपने लगवाई थी और कोर्ट के थ्रू अभी तक लगी हुई। आप बताते हैं वही टाउन का इतना बड़ा एरिया है और पूरे इस्लामाबाद का एरिया, आपने सिर्फ अपनी जमीनों के लिए वो सारा काम किया था। बता दें वो कब पाबंदी खत्म हुई? सवाल से ज़्यादा आपने कुछ, मैं ये कहूँगा कि जो हकीकत में मबनी नहीं है वो कमेंट्स किए हैं, बिल्कुल इसमें वो हकीकत नहीं है। पहली बात कि पाबंदी हमने नहीं लगाई थी, पाबंदी जो है वो कोर्ट के ज़रिए लगी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। मैं सुई गैस के मीटर्स की बात कर रहा हूँ, और उसकी वजह ये थी कि बेशुमार दरखास्तें इस्लामाबाद में उन सोसाइटीज़ जिनके पास NOC नहीं है उसके हवाले से गई थी, और उस पर पाबंदी लगी कि जनाब जहाँ NOC हो जिस सोसाइटी के पास, सिर्फ उसे कनेक्शन दिए जाए। मैं सिर्फ, आपने एक सोसाइटी का नाम लिया, गौरी टाउन का नाम आपने लिया। इन्हीं मामलात के ऊपर इस्लामाबाद में कुछ प्लाजाज को रूरल एरिया में सील किया गया, जुर्माना किया गया। मैंने सबसे पहले CDA से एहतजाज किया। ये नुकता भी कल हमने वहाँ पे रखा कि प्राइवेट लैंड ओनर्स जो हमारे रूरल एरिया हैं, जैसे मैंने नाम लिए चंद आपके सामने, सुहान, लेतरार रोड, खन्ना, रवात, बारागऊ, बनीगाला, जो प्राइवेट, वहाँ पे किस हैसियत में CDA जाकर उन प्लाजों को सील कर सकता है, कैसे दुकानें बंद कर सकता है। इसके लिए एक जामिया हिकमत अमली और स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं, और सुई गैस के मीटर इंशाल्लाह ताला खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, टाइम फ्रेम भी दे दें सर, कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, और ये पाबंदी बाई दी हुई गैस की कमी की वजह से पूरे मुल्क में भी है। तो अगर पूरे मुल्क में बैन है सुई गैस की फर्दर पाइपलाइनों पे या मीटरों पे, तो इस्लामाबाद के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि हमें स्पेशल एग्जम्पन दी जाए और यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट। ये बता दें कि इस तासुर को कैसे गाइड करेंगे? अदालत ने भी ये सवाल पूछा कि ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया, 12 दिन पहले क्यों आया, जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। तो इसका जवाब वफाक की तरफ से जमा नहीं करवाया गया था। इस पर क्या कहेंगे? और दूसरा, ये अदालत ने भी पूछा